Next type is decomposition reaction. First, the definition. In decomposition reaction, a single compounds break down to produce two or more similar substance that we call as a केमिकल रिएक्शन. और इसमें इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आप देखेंगे कि आप जो अप्लाई कर रहे हैं मे बी हीट के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी या लाइट के फॉर्म में एनर्जी सप्लाई कर रही हैं और उस सप्लाई की वजह से ही ये जो कंपाउंड है वो ब्रेक डाउन होंगे. सो वी टेक वन एग्जाम्पल. अभी मान लो आपके पास जो कंपाउंड है दैट वी कॉल्ड हैज AB. ओके, जो आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन से जो मिला है AB को कंसिडर करते हैं और व्हेन दिस AB विल बी ब्रेक डाउन टू फॉर्म A and B. अब यहाँ पे ब्रेक डाउन करने के लिए आप या तो आप उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया होगा या तो हीट प्रोवाइड किया होगा या लाइट प्रोवाइड किया होगा. नाउ यू अंडरस्टैंड? ओके, एंड अगेन दिस decomposition reaction be classified into three major type, that is electrolytic decomposition, okay, that we call as electrolysis. Second one thermal decomposition and the third one is photochemical. नाम से indicate हो रहा है क्या होंगे. electrolysis, that means we use that electric energy. Second one that is called thermal, तो यहाँ पे आपने heat use किया होगा, temperature का use किया होगा. And next one photochemical, that is based on that light. The first type of decomposition reaction is electrolysis. Electrolysis is a process that uses electricity to separate chemical compound. Inside the glass of water, water molecules are being split to produce hydrogen and oxygen gas. The word electrolysis comes from the Greek lysis, which means to dissolve or break apart. For this purpose, we need apparatus that we call as electrolytic cells. And electrolytic cells contain two electrodes and a solution which dissolve ions called an electrolyte. That means this apparatus contain electrodes and electrolytes. We also need a source of electrical energy like a battery. Electrolysis would not happen spontaneously and always require electricity. When the electrodes are connected to a battery or other sources of electrical energy, one become positive charge and one become negatively charged. These charged electrode can then react with the ions in the electrolytes. The type of chemical reaction that occur in an electrolytic cell is called oxidation reduction reaction. The negatively charged electron known as cathode reduce positive ion by adding electron to them, creating neutral atoms. At the same time, the positively charged anions oxidize negative ions, produce more free electrons. These two of reaction generate new chemicals and also complete the circuit with the battery to keep current flowing through the cell. So first example is that electrolysis of water. To understand this process, electrolysis, let's first look one of the most common and simplest electrolytic process, the electrolysis of water. In this process, water molecules also split to produce both hydrogen and oxygen gas. To perform electrolysis of water, you need to an electrolytic cell with two electrodes inside a solution of water with electrolytes in it. Water molecules will dissociate into hydrogen and hydroxide ions. Pure water does not conduct electricity very well, so you need to add some extra ions. Once you connect the electrodes to a battery, the hydrogen ions, H plus ion, will be reduced at the cathode to produce hydrogen gas, and the water molecules will be oxidized at the anode. The result of this oxidation reduction reaction is the production of both oxygen and hydrogen gas. Hydrogen is used in many industrial applications, including the production of hydrogen fuel cells, the oxygen that the astronauts breathe while they are on the space station is created by the electrolysis of water. This all about that electrolysis of water. इससे पहले इसके साथ मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी जो कि आपको अपने साइंस कॉपी में मेनली आपको साइंस की 3 कॉपीज़ बनाना है. वन इज़ दैट बायो, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स. उसके अलावा आपको जो भी होमवर्क इसके साथ दिया जा रहा है
वो आपको एक होमवर्क कॉपी जो कि आपके बाद में पोर्टफोलियो के फॉर्म में यूज़ किया जाएगा। सो उस कॉपी को आपको नीटली कीप करना है, दैट मीन्स कवर्ड होना चाहिए और थोड़ा ज़्यादा पेज की भी होना चाहिए। वही आपके मल्टीपल असेसमेंट में यूज़ होंगे। इसके साथ जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो आपके केमिस्ट्री के कॉपी में, बायो के है तो बायो की कॉपी में आपको फेयरली करना है। यही आपके इस चैप्टर के हर चैप्टर में दिया जाएगा नोट्स, तो यही आपका बाद में भी काम आएंगे। आपको एक्स्ट्रा नोट्स लिखा नहीं दिया जाएगा। सो यू राइट इन योर कॉपी। Second type of decomposition reaction is thermal decomposition. When a substance decomposes on heating, it is called thermal decomposition. Means here we are using that heat as a source of energy. On heating, some substances undergo decomposition, new substances are formed that we call as a thermal decomposition. Here we take that example, calcium carbonate. Okay, calcium carbonate का another name that we call as a limestone, and we provide that heat energy. It will be split into two, that is calcium oxide and carbon dioxide. You know that calcium oxide, the common name for that calcium oxide is quicklime, and it is mainly used to manufacture cement also. ओके तो यहाँ पे क्या है, हमने जो एनर्जी यूज़ किया है यानी कि आपकी जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको हीट एनर्जी मींस हीट प्रोवाइड करके उसको दो में ब्रेक डाउन कर दिया, दैट वी कॉल एज ए कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. Another examples, for example, mercury oxide, when providing heat energy, it will be split into mercury and oxygen. Next, ferrous sulfate crystal, जिसके कलर जो लाइट ग्रीनिश कलर के होंगे उसको भी हीट प्रोवाइड करेंगे. इट विल फॉर्म ए फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. ठीक है, ये वाला रिएक्शंस ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है. दैट मीन्स जब आप फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो उसमें आपको जो जो मिलेंगे मीन्स वो तीन इसमें कंपाउंड में स्प्लिट हो रहे हैं. वन इज़ दैट फेरिक ऑक्साइड जिसका कलर ब्राउनिश है, सेकेंड वन सल्फर डाइऑक्साइड एंड थर्ड वन सल्फर ट्राइऑक्साइड. इसमें पंचन मीन्स इसमें एक स्मेल आते हैं, पंचन स्मेल बोलते हैं, किसकी वजह से आते हैं, वो आपके सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से. तो इससे आप पता चल सकते हैं, मीन्स हमने बताया है कि कैसे आप फाइंड आउट करोगे कि इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है. तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक जो शो करेंगे वो है सल्फर डाइऑक्साइड के थ्रू जो स्मेल आएंगे, दैट वी कॉल एज ए पंचन स्मेल. Okay, that is the another example, and one more example, that is lead nitrate. lead nitrate को हीट करेंगे तो उसमें भी आपको lead oxide एंड आपको उसमें तीन कंपाउंड सेम वैसे ही मिलेंगे, जैसे कि एक है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. तो ये जो आपकी जो नाइट्रोजन ऑक्साइड यूज़ हो रहा है उसका भी क्या होता है, ब्राउन फ्यूम्स फॉर्म करेंगे और उसका पंजन स्मेल आएंगे. यहाँ पे भी सेम वैसे ही पंजन स्मेल एंड ब्राउन फ्यूम्स फॉर्म होंगे. दिस ऑल आर द सम एग्जाम्पल्स फॉर दैट थर्मल डिकम्पोजिशन. और भी है, कॉपर नाइट्रेट का भी है, एंड कॉपर नाइट्रेट को भी हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड एंड ब्लैक कलर का जो कंपाउंड है कॉपर ऑक्साइड का मीन्स उसका कैरेक्टरिस्टिक ही ब्लैक कलर होंगे. नेक्स्ट उसमें रेडिश कलर के नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मिलेंगे. दिस ऑल आर द एग्जाम्पल फॉर थर्मल डिकम्पोजिशन. Next is photochemical decomposition. The decomposition reaction caused by light, that is sunlight, is called that photochemical decomposition. In another word, when a substance is decomposed in presence of sunlight, it is called a photochemical decomposition. Here one example is given, that silver bromines. When silver bromines in presence of sunlight, it break down into silver and bromine. Okay, and the characteristic that is that silver bromine is brown in color when it break down into silver, and the silver is grey in color. Okay, और ज़्यादातर आप देखेंगे ये वाला जो सिल्वर ब्रोमीन है वो आपके ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है. तो ये कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा रिएक्शन आपको हो सकता है, इसमें रिएक्टेंट दे दे या प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना होगा, या तो इसमें से कोई सा भी एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी पूछ लें, और अगर उसका कैरेक्टरिस्टिक पूछेंगे या इसका यूज़ किस में किया जाता है ऐसे भी पूछ सकते हैं. सो आपको ये दो चीज़ें याद करना है कि फर्स्ट अगर सिल्वर जो ब्रोमीन होंगे उसका कलर ब्राउन होगा, और जैसे ही वो ब्रेक डाउन होंगे और सिल्वर बनेंगे और उस सिल्वर का कलर ग्रे कलर होगा, और ब्रोमीन जो कि गैसेस फॉर्म में निकलेंगे
तो ये जो है आपका ये पूरा ये जो सिल्वर ब्रोमीन का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आप मेनली यूज़ किया जाता है आपके ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। सेकेंड वन इज़ दैट सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड भी का जो कलर है वो वाइट कलर होंगे और जैसे ही उसमें भी सनलाइट गिरेंगे सेम वही कलर होगा, सिल्वर का कलर ग्रे होगा और क्लोरीन गैस निकलेंगे। तो ये दोनों जो रिएक्शन इन द प्रेजेंस ज़्यादातर होता है किसके, सनलाइट के प्रेजेंस में, उसलिए इसको बोला है। तो मीन्स इट इज़ ए लाइट सेंसिटिव रिएक्शन। कोई आपने देखा होगा, कभी कभी बोला जाता है कोई केमिकल्स को हमें क्या है कि ऐसे ओपन एरिया में नहीं रखना है, या तो कोई ऐसे ब्राउन कलर का जो बोटल्स है, कभी केमिस्ट्री के लैब में भी देखोगे कोई होता है फोटो सेंसिटिव होता है, मीन्स लाइट की सेंसिटिव होते हैं, तो उसको ऐसे बोटल्स में रखा जाता है जिसमें कि लाइट ना पड़े। तो उस टाइप के रिएक्शन किसकी वजह से, मीन्स क्या है उसमें फोटो डिकम्पोजिशन हो सकता है। कोई भी केमिकल है उसमें जो है वो कंपाउंड होगा और वो कंपाउंड ब्रेक डाउन होके ऐसे रिएक्टेंट बन सकते हैं, तो वो भी उसकी वजह से इसको क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं ब्राउन बोतल में।